జిల్లా నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో బీజేపీ ర్యాలీ భవానీ మందిర్ నుండి రాజీవ్ చౌక్ వరకు నిర్వహించారు. అమరావతి ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ రామ కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేస్తే పాకిస్తాన్ కు వేసినట్లే. 5 లక్షల మెజార్టీతో బీబీ పాటిల్ గెలవడం ఖాయం. కమలం పువ్వుకు ఓటు వేసి మోదీని గెలిపించాలని కోరారు. 10 సంవత్సరాలు బీబీ పాటిల్ జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ పార్లమెంట్ అభివృద్ధి చేశారు. బీబీ పాటిల్ చాలా మంచి మనిషి. ప్రజలకు ఎల్లవేళల్లా అందుబాటులో ఉండి ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాటం చేస్తున్నారు. దేశంలో నరేంద్ర మోదీ తప్ప ఇతరులు ప్రధానమంత్రి కాలేరన్నారు. పాకిస్తాన్ నుండి వస్తున్న రాహుల్ గాంధీ మంచి నినాదాన్ని రాహుల్ గాంధీ కులావ్ ఫిర్సే ఇస్ దేశ్ మే హమ్లే ఖరావ్ ఇలాంటి కుట్రలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుందన్నారు. 4.4 से 8.4 हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है. इस तरीके के बहुत सारे विकास के काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में 10 साल में हो गए. इससे 10 साल के पहले तेलंगाना पूरे भारत देश में केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी. दिल्ली से लेकर दिल्ली तक जब सरकार थी, जब भी कुछ काम नहीं कर सके तो आप काम करने का भरोसा कैसा देते, मैं आपको सबको पूछना चाहता हूँ. डेफिनेटली आने वाली सरकार बीजेपी सरकार है. दिल्ली में आने वाली सरकार बीजेपी सरकार है. तो जो बीजेपी सरकार का अगर एमपी रहेगा तो कई गुना इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हम जरूर करेंगे, ऐसे विश्वास देता हूँ. और सभी लोगों को आने वाली 13 तारीख को कमल फूल पे वोट देके जिताना चाहिए, ऐसा बता चाहता हूँ. अंदर की पेड़ पे नमस्कारालु ధన్యవాదాలు. గత 10 సంవత్సరాలు ఎన్నో డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా పెండింగ్ డెవలప్మెంట్స్ అయినా ఉన్నాయి చేసుకోవాలంటే అబ్కి బార్ 400 పార్ల భాగస్వామ్యం అవసరం ఉంది. తప్పకుండా అబ్కి బార్ 400 పార్ల భాగస్వామ్యం అయితే రాబో రోజుల్లో కూడా ఇంకా మంచి డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం. మోదీ గారు మొన్న చెప్పినట్ల అన్ని విషయాలు చెప్పిండు. ఇంతకుముందు గోదావరి అక్క కానీ వేరే అందరూ డెవలప్మెంట్స్ విషయం చెప్పిండు, సందర్భాలు చెప్పిండు. ఓబీసీ విషయం కానీ ఇక్కడ లింగాయత్ కమిటీ ఎక్క ఉండేది, ఓబీసీ కోసం పెండింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా చేసుకుంటాం. అట్లానే మా ఎస్సీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, దళిత్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళది వర్గీకరణ విషయం ఉంది. ఇక్కడ ఎస్టీ ఉన్నారు, ట్రైబల్ ఉన్నారు, వాళ్ళది కూడా ఇష్యూనే. ఈ అన్ని విషయాలు ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటామని నాకు పక్కా విశ్వాసం ఉంది. రాబో రోజుల ఢిల్లీలో వచ్చే గవర్నమెంట్ అంటే బీజేపీ గవర్నమెంటే. ఇక్కడ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి గెలిచిపోతే ఇంకా ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ చేసుకో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. గత 2 సార్లు నాకు మీరు గెలిపి తోలిసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తా. ఇంత రాబో రోజులు కూడా 13 తారీఖు 4-5 రోజులు మంచి పని చేసుకొని 13 తారీఖు కమల పూలు కోటి గెలిపిస్తే తప్పకుండా డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఎక్కడ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ నేను నవనీత్ రాణా గారు మేడంకు థ్యాంక్స్ చెప్తాను. అందుకోసానికి మాకు ఆయన వాళ్ళు ఇటు ఎక్స్ట్రా టైం ఇచ్చి ఇక్కడ వచ్చిన అందుకోసం ధన్యవాదాలు. भारत माता की सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए. भारत माता से प्यार करते हैं ना, एकदम सभी लोग ऊपर हाथ. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నారా? నాకు తెలుగు జనాలంటే నాకు చాలా ప్రేమ, చాలా ఇష్టం. అందుకని నేను ఇక్కడ వచ్చాను ఈరోజు. అని మీరందరూ నవనీత్ కౌర్ ఎవరు అంటే మీరందరూ నాకు పేరు ఇచ్చింది అంటే ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులకి, తెలంగాణ ఆంధ్రలో ఉంటుంది అందరూ తెలుగు ప్రేక్షకులు. ఐ థ్యాంక్ బీబీ పాటిల్ గారు. అందరూ మీరు చెప్పారు గెలిస్తే కాదు, 101% లీడ్ ఇంత ఉంటుంది. ఇంత లీడ్ బటన్ नंबर भी 2 ही, पर आप आदमी 1 नंबर है. నేను 5 years పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు, నేను ఇప్పుడే కూర్చుంటున్నప్పుడు నేను పాటిల్ గారు అందరూ మన తెలుగు ఎంతమంది పార్లమెంట్ ఉన్నారు కదా, అందరూ పక్కన నేను కూర్చుంటున్నప్పుడు నేను जब भी मैं देखती थी तो इनको यही बोलती थी कि 2 बार के एमपीए सरल तरीके से अपना काम करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत कम दिखाई देता है. और सभी ने कहा, हमारे संगप्पा जी जो हैं, गोदावरी दीदी जो हैं, और एक्स एमएलए 4 बार
गंगाराम जी, ओम शांति है ना, गंगाराम जी, और विजय पाल जी हैं, रवि गारू है, रेड्डी गारू, उमाकांत पाटील, रजनीकांत गारू आणि मीर अंदरू मी आप सभी को दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी. ఎందుకంటే నా ఎలక్షన్ పోలింగ్ అయింది, సెకండ్ ఫేజ్ లో నా పోలింగ్ అయిపోయింది. और अब हमारे आंध्र और तेलंगाना का विकास होना चाहिए. ये देखो, जो भी कोई आपके सामने खड़ा है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने वाला है कि कौन बनने वाला है? कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है. जब मोदी जी की गारंटी है कि हर महिला के सर पे छत होगा, हर महिला को घर मिलेगा, हर युवकों के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा मत भी उसी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को जाएगा. यही सोचकर आने वाले समय में नंबर 2 का बटन दबाना है. कितना नंबर? और आप लोगों ने जिस तरीके से, और तेलंगाना में बहुत सारी सीटों पे प्रचार करने जाना है. एक तो लता जी हमारी कैसा ऐसे निकाल के ऐसे अगर छोड़ेंगे तो निशाना वहीं लगेगा. पाकिस्तान आज आटे के लिए तरस रहा है, आने वाले समय में पानी के लिए भी तरसाएंगे पाकिस्तान को. जिसने इस देश पे नजर रखी है उसको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे. आने वाले समय में ये क्षेत्र के लिए ट्रेन की सुविधा, ट्रेन कावाली ना मेरे अंदर की कावाला की नको कावाला ना तर మీరు ఎవరికి మతదాन ఇస్తారు? ఎవరికి ఓటు ఇస్తారు? ఎవరికి? मोदी. अब की बार ये डिस्ट्रिक्ट में क्या खिलेगा? क्या खिलेगा? क्या खिलेगा? ये आदत डालना है. अगर राज्य का विकास करना है तो मोदी जी का परिवार का ही कैंडिडेट यहाँ जीतना चाहिए. अगर वो जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा. अगर बीबी पाटिल जी जीतेंगे तो इस क्षेत्र में रोजगार आएगा. अगर बीबी पाटिल जी जीतेंगे तो इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, रेलवे आएगी. इस क्षेत्र में अगर बीबी पाटिल जी जीतेंगे हर व्यक्ति को, हर महिला को घर मिलेगा. अगर बीबी पाटिल जी जीतेंगे हर रोड, हर व्यवस्था, हर मार्केट ये यहाँ पर करके लाएंगे. तो बीबी पाटिल जी को अगर चुन के लाना है, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, बेरोजगार के हाथों को रोजगार देना है, महिलाओं के छत पर, सिर पर घर मिलना चाहिए, तो बीबी पाटिल जी को जिताना बहुत जरूरी है. तो मैं आप सभी से विनती करूंगी कि हमारे बीबी पाटिल अन्ना को भारी मतों से आप चुन के दीजिए. और मेजॉरिटी नंबर तो 2 है पर 1 नंबर का आदमी है, तो 5 लाख से लीड से भी ज्यादा वोट देकर हमारे बीबी पाटिल अन्ना को जिता के लाइए. इतना ही मैं कहूंगी. और आप सभी को दिल से, सभी युवकों को, बुजुर्ग को, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं दिल से विनती करूंगी, आप जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, अभिमान है उस चीज का कि पार्लियामेंट में रहने के बाद भी इतने सरल तरीके से लोगों के साथ में प्रेम से व्यवहार करना, लोगों को गरीब ना समझकर अपना परिवार समझना, वो ही मोदी का परिवार हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है. आज इस क्षेत्र में आकर, आपके डिस्ट्रिक्ट में आकर जो प्यार मेरे लोगों ने मुझे दिया है, जो सम्मान आपको दे रहे हैं, वो आने वाले पोलिंग के दिन भी आपको उतनी ताकत से दिखेगा. कोई कितने लोग भी खड़े रहे, कितना भी कोई झंडा लेके रहे, पर हम पाकिस्तान को जीतने नहीं देंगे. हम इस देश के प्रधानमंत्री के हक में जो खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री का जो परिवार है, उसके हक में मतदान करेंगे. और आपकी बार कांग्रेस कहती है कि संविधान खत्म करने आया है मोदी. अरे किसी के बाप में ताकत नहीं है कि वो संविधान खत्म कर सकेगा. अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान इस देश
का सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए रहेगा। तो संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता है। आज लालू प्रसाद यादव यूपी में बैठकर कहता है बिहार में कि अगर हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया की सरकार आई, तो हम आने वाले समय में एससी एसटी आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। अरे इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण इस देश में खत्म करेगा। एससी और एसटी का आरक्षण जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश में एज ए प्राइम मिनिस्टर है, तब तक उनका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। ये मैं कहती हूं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी संविधान, जब नया पार्लियामेंट बनता है तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेसियों, पाकिस्तान पे प्यार करने वाले कांग्रेसियों को एक बताना चाहूंगी कि अभी भी इस देश में, इस देश के भक्त अभी भी जीवंत हैं। तो इस देश को कोई खत्म नहीं होने देगा और तुम्हारी मंशा कभी इस देश में पूरी नहीं होगी, इतना मैं जरूर आप लोगों को कह सकती हूँ। प्रधानमंत्री बनने वाला है कि कौन बनने वाला है? कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है, क्योंकि पाकिस्तान से जो नारा आ रहा है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी को लाओ और फिर से इस देश में हमला करवाओ, इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पक्ष कर रही है। हम लोगों को वो भक्त, देशभक्त चाहिए, लोगों को सर पे बिठाकर सम्मान देने वाला चाहिए। तो वो एक ही व्यक्ति इस देश में है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हमारे बीबी पाटिल अन्ना को चुन के लाना है, और वो भी ताकत से चुन के लाना है। 100% लाना ही पड़ेगा। देश को 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने की लड़ाई है। तो मैं आप लोगों को सभी को विनती करूंगी, खुद ये समझना है, मैं बीबी पाटिल हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार हूँ। ये समझकर आप लोगों ने आने वाले जितने भी दिन बाकी हैं उतनी मेहनत करके वन साइड वोट देके हमारे बीबी पाटिल जी को जिताइए, इतनी विनती करती हूँ। भारत माता की